मुझे वो वाली मेंटेलिटी बड़ी लूजर लगती है कि क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ फिल्म बना दी तो बस इससे ज्यादा बुरी फिल्म और कोई हो नहीं सकती, कोई ना देखे, दिस वाज अ टॉर्चर टू वॉच। अलग लगे क्योंकि मैंने यार ये मुझे लगा बिल्कुल लाइक पाकिस्तान फिल्म है, ये हमें गालियां देंगे, बुरा भला कहेंगे और चल के मैं देख सकता हूं, मेरी जो पैट्रियटिज्म है मुझे अलाउ नहीं करते देखना। उसका नहीं, Dhurandhar is a magnificent movie, but, and there's always a but, We'll get to those buts, but first I want to talk about why I thought it was a magnificent movie. I watched अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। is a propaganda with a capital P. सच ये है कि ये फिल्म बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है। अब जब मैंने ये कह ही दिया है, once we've gotten this out of the way, बिल्कुल जैसे कि पहले हिस्से में इन्होंने किया था, धुरंधर के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा था कि जी इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स, तो उधर दर्शकों को ये ऑप्शन दे दी थी कि आप पिक एंड चूज कर लो, आप चुन लो इसमें से कौन सी बात पे यकीन करने की सच है, चुन लो कौन सी बात को आपने कहना है ये ड्रामेटाइजेशन है, ये तो फिक्शनलाइज्ड है, ये तो झूठी बात है। इधर भी उन्होंने यही किया, रूम आपके लिए ओपन छोड़ दिया, जिसका कि मतलब कि जो ऑलरेडी बायस्ड माइंडसेट के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं, मतलब कि अगर आप मोदी भक्त हो तो आप हर उस चीज को सच मानोगे जो मोदी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बुरा दिखाती है, जो भारत के लिबरल्स को और एनजीओ वालों को और स्कॉलर्स को बुरा दिखाती है, और जो पाकिस्तान को बुरा दिखाती है। आप कहोगे कि हर वो बात सच्ची है, और वो चीज जो कि गलती से भी या अनइंटेंशनली भी शो कर दे कि पाकिस्तान के लोग ह्यूमन बींग्स हैं या ह्यूमनाइज होते हुए अगर थोड़े से दिख भी रहे हैं, आप कहोगे कि ये है वो फिक्शन वाला पार्ट। तो वो जानबूझ के इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, जिसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने जानबूझ के फिल्म को पोजीशन किया ही कुछ ऐसे है कि आप पे छोड़ो, हम थोड़ी बताएंगे कि इनमें से एक एक कौन सी बात सच्ची है तो कौन सी वाली बात फिक्शनलाइज्ड है या कौन सी बात इनमें से ड्रामेटाइजेशन है। बस आप लोग चुन लो, पिक एंड चूज करो, चेरी पिकिंग करो। तो वो तो हम सारे कह रहे हैं, वो तो मैंने भी किया है फिल्म देखते हुए, तो मैं अपनी भी खता मान रहा हूँ। तो आपसे भी यही मेरी इल्तिजा है, आप भी अपने आप को इतना महान मत मानिए, दरअसल आप भी बायस्ड हैं और आप बायस्ड लेंस के साथ ही फिल्म को देख रहे हैं। तो in an American cinema, and if you know something about American cinemas, you know that they don't have any intermission, which means that you basically had to sit through 3 hours 35 minutes straight of the movie without being able to move out of your seat. But nowhere in these 215 minutes did I feel bored. You may feel other emotions, you may feel disgust. I did look away in the very particularly violent and gory scenes. I'm not really interested in that level of violence. You may feel discomfort, which I definitely did at times as a Pakistani. The Kandahar hijacking, the Delhi parliament blasts, the Mumbai attacks. I mean, I was expecting all of that, but even then, you do feel a little bit ashamed or guilty by association, purely in terms of citizenship. So for me, the best thing about it intersperses the attack scenes with actual documentary footage, and the world building is so convincing that one can easily fall into the trap of thinking that everything being shown on the screen is factual. But there is zero evidence linking Lyari to anything that happened in India. Lyari was an entirely domestic situation. If the director wanted to connect Mumbai with Pakistan, the place to go to would have been Muridke or terrorist training camps in Fata, but I guess it would be harder to glamorize them compared to Lyari. Interestingly, the Lyari timeline does map on to the years that are shown here. It was not just something that happened in the 1990s. The Lyari and Rahman Dakait situation stretched into the late 2000s. But to draw a connection between the two, I have no idea where that comes from. I read this almost book-length report on Rahman Dakait and the Lyari of those years, and it documents innumerable crimes committed by them, and it even goes up to the level of Asif Ali Zardari and his interference in asking Chaudhry Aslam not to kill Rahman Dakait in an एक्सपीरियंस के लिए गया था। ऑब्वियसली इंडियन ऑडियंस जो इंडिया में देख रही होगी या इंडिया से बात देख रही होगी, उनका तो इमोशन जुड़ा है फिल्म से ना। तो मैं तो एज ए न्यूट्रल पर्सन देखने गया था, हालांकि मेरे मुल्क के खिलाफ फिल्म थी, लेकिन मैंने कहा यार कि मैं देखता हूँ, मैं भी इंगेज रहा हूँ फिल्म के अंदर। और यार जो ओपनिंग सीन है, जो ओपनिंग सीन है फिल्म का ना, जो बैक स्टोरी दिखाई है, जो रणवीर सिंह बैक स्टोरी दिखाई है, यार यकीन करें कि उसने रोंगटे खड़े कर दिए यार। और रणवीर सिंह आई न्यू कि वो एक अच्छा एक्टर है, लेकिन जो एक्टिंग वो इस फिल्म में कर गया, खासतौर पर पार्ट 2 में, पार्ट 1 को तो अक्षय खन्ना पी गया था सारी फिल्म, लेकिन उसने दिखाया पार्ट 2 के अंदर के भाई असल हीरो फिल्म का मैं ही था।
जो उसने अपनी बैक स्टोरी की एक्टिंग की है और जो शानदार उसने काम किया बाकी के जो फिल्म के अंदर ही वाज द सेंटर पॉइंट और उसने अपने ऊपर से नजर हटने नहीं दी फिल्म के अंदर। कमाल की एक्टिंग रणवीर सिंह की। संजय दत्त का रोल बहुत जबरदस्त था, लेकिन की आजादी का हक मिलना चाहिए। मैं आज भी जो कश्मीर है इंडिया को उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता हूँ, जो किसान वर्जन ऑफ पीओके कहते हैं। सो दीज आर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम दोनों के बीच। लेकिन जो लोग आम लोगों में जाकर हमले करते हैं, जो बम ब्लास्ट करते हैं ट्रेनों में, जो बम ब्लास्ट करते हैं प्लेन्स में, जो बम ब्लास्ट करते हैं शॉपिंग मॉल्स में, जैसे मुंबई का अटैक हुआ, या लोग पाकिस्तान के अंदर किसी चर्च पे या किसी मस्जिद पे जो अटैक होता है जिसमें आम बंदा शहीद होता है या मरता है, जिसके दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं, वो लोग कॉमन एनिमी है हमारे भी और हिंदुस्तानी पब्लिक के भी। और मैंने इनकी परेडें देखी माल रोड के ऊपर। हमें ये बताया गया कि ये इंडिया में जहाद करने जाएंगे, वही वर्जन के जी इंडियन फोर्सेस से लड़ेंगे। तो लोग एक आदमी खड़ा हुआ था वहां पे, वो कहता है वाह जी वाह, देखो मुंडे किस तरह जा रहे हैं तो लड़न जहाद करन। तो एक बाबा जी खड़े थे और उनके वो जबान से वर्ड जो निकले हैं मुझे आज तक याद। उन्होंने कहा बेटा ये कोई जहादीवादी नहीं है, ये भूखे कुत्ते हैं, ये हमारे मजहब को गंदा कर रहे हैं और ये भूखे कुत्ते इनके आगे जो बोटियां डालेगा कल को उसके लिए हमें भी काटेंगे, हमें भी मारेंगे। और फिर वही हुआ कि प्रॉक्सिस पाकिस्तान ने क्रिएट की। झूठ नहीं बोलना, ये सच्ची बात है। पाकिस्तान ने प्रॉक्सिस क्रिएट किए, पाकिस्तान ने तालिबान क्रिएट किए, पाकिस्तान ने और बहुत सारे लश्कर जंग भी, लश्कर तैयबा, पाकिस्तान ने इस्लाम के नाम पे बहुत कुछ पाकिस्तान में गलत हुआ और फिर उन्होंने वापस हमें काटा। यानी कि हमारे 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी शहरियों को उन्होंने शहीद किया। तो हमजा अली अब्बासी AK जस्करी जस्सी ने जो बात बोली इस फिल्म के अंदर कि हम तुम्हारे मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम इन टेररिस्ट के खिलाफ हैं, मैं इस बात को पूरी तरह से इसका समर्थन जो कहते हैं कि समर्थन क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करता हूँ, इसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इस अगर ये बात जिन्होंने बोली है अगर ऐसा ही है तो भाई साहब जो